Good afternoon, everyone. A very warm welcome to today's book reading session. So, without any further delay, let us start our session with a short meditation. Deeply. Take a deep breath in, hold, and exhale. Take another deep breath in, hold your breath, and exhale. Withdraw your focus from the outside world and turn it inward. Feel the peace, joy of being in the present moment. You are totally immersed in the present now. There is no need to worry about past or future. Just the present moment. Remember, my present is making my tomorrow. Future is in my hands. Think of any problem in your life, any problem. Now, ask your higher intelligence. What are the belief systems? What are the feelings that I was having that created this problem in my life? Intelligence to guide, trust it. Stop naming things that you were thinking or believing that got manifested in your reality as a problem. After the session, you are requested to write it down one by one in a diary or note. It is for your own good. So, stop. I will find out the seed that I planted, the negative thoughts. This problem is not actually a problem. It is an opportunity.
The universe is shedding light, is guiding you, is showing you where you need to improve. So, connect your higher intelligence. Remember me. Believe in with God's grace. You can find solution. Any problem in your life, strength, God's powers, love, and blessings are a protection around me. I am safe and protected. All is perfect here and complete in me. Om Shanti. You can open your eyes now. Share the screen. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था, उसमें से हमारा क्या टास्क। आज के मेडिटेशन में भी ये बात दोहराई, what kinds of thoughts am I having that create this? तो जो भी प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, खुद से पूछता है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। अपने अंदर आपको झांकना है, रिफ्लेक्ट करना है कि आपके अंदर में क्या थॉट्स थे, जिन थॉट्स ने ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट करा। इंटरेस्ट में आंसर आपके अंदर से ही आएगा। जब हम गॉड से कनेक्ट करके उनसे गाइडेंस सीख करके कुछ करने बैठते हैं तो वो काम जरूर पूरा होता है। कितनी भी बड़ी बात है, छोटी बात क्यों ना हो, आप बैठे लिखें, लिखने से क्लैरिटी आएगी। लिखने फिर आपने क्या क्या थॉट्स पहले से सोच के रखे थे, कुछ फेयर है जो कि इस तरह से आपके रियलिटी में आ गए। तो जब हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी तभी तो हम उन पैटर्न्स को रिलीज कर पाएंगे। इसलिए हमें उन चीजों को पता करना होगा। और ये जो प्रॉब्लम भी है, इसको देख के घबराना नहीं, ये भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसा सोचिए कि जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी फेयर है, वो जाने के लिए ही आए हैं। तो आप एक बार उनका डट के सामना करेंगे, फिर वो चली जाएगी। We are with you always. और आया फैमिली में। So we'll start from one of my early teachers, Dr. Raymond Charles Parker, would repeatedly say, when there is a problem, there is not something to do, there is something to know. ऑथर कह रही है कि उनके एक अर्ली टीचर थे डॉक्टर रेमंड चार्ल्स बाकर, जो कि ये बात बार बार कहते थे कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत है। और जो कल वाली एक्सरसाइज थी वो बिल्कुल इसके साथ में कनेक्ट करती है। तो हम जब जानेंगे ना कि क्या रीजन थे, कैसे हमारे थॉट्स, क्योंकि हमारे थॉट्स सीड होते हैं और उसके बाद हमारे वर्क, रिलेशनशिप और हर एक एरिया में वो इफेक्ट डालते हैं। तो जब हम ये जान जाएंगे ना, वो सीड का हम पता लगा लेंगे, तो फिर हम उस जड़ को अच्छे से जानकर खत्म कर पाएंगे, उस कारण को जानकर। Our minds create our future when we have something in our present that is undesirable, then we must use our minds to change the situation. And we can begin to change it this very second.
तो हमारा जो माइंड है वही हमारे फ्यूचर को बनाता है। तो जब भी हमारे प्रेजेंट में कोई चीज अनडिजायरेबल हो रही है, हमारे चाहने के अनुसार नहीं हो रही है, तो हमें उस सिचुएशन को चेंज करना होगा। कैसे? अपने माइंड की पावर्स को ही यूज करके उस सिचुएशन को चेंज करना। और हम ये काम अभी तुरंत इस सेकंड से ही स्टार्ट कर सकते हैं। माइंड की पावर्स को यूज करना क्या होता है कि जो भी नेगेटिव चीजें थी उसको हम खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। It is my deep desire that the topic how your thoughts work could be the very first subject taught in school. I have never understood the importance of having children memorize battle dates. It seems like such a waste of mental energy. Instead, we could teach them important subjects such as how the mind works, how to handle finances, how to invest money for financial security, how to be a parent, how to create good relationships, and how to create and shape self-esteem and self-worth. तो ऑथर कह रही है कि उन्हें ये लॉजिक नहीं समझ आता है कि बच्चों को वैलिड को डेट्स से याद कराया जाता है। इंस्टेड वो चाहती है कि हमारे थॉट्स कैसे काम करते हैं, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हम अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, मनी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, फाइनेंशियली सिक्योर रहे, अच्छा पेरेंट कैसे करें, गुड रिलेशंस कैसे क्रिएट करें, और सेल्फ एस्टीम सेल्फ वर्थ हम कैसे क्रिएट और मेंटेन कर सकें। ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कभी भी सिखाई नहीं जाती है। तो ऑथर कहती है कि वो चाहती है कि स्कूल में ये सारी चीजें सिखानी चाहिए बच्चों को। Can you imagine what a whole generation of adults would be like if they had been taught these subjects in school along with their regular curriculum? Think how these truths would manifest. We would have many people who feel good about themselves. We would have people who are comfortable financially and who enrich the economy by investing their money wisely. They would have good relationships with everyone and would be comfortable with the role of parenthood when they grow on to create another generation of children who feel good about themselves. Yet, within all this, each person would remain an individual expressing his or her own creativity. चौथे कह रही हैं कि अगर वो सारी चीजें बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाई जाए कि कैसे कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एरिया से रिलेटेड चीजें अगर बच्चों को सिखाई जाएगी तो कम माइंड, तो और फिर कह रही है कि क्या हम इमेजिन कर सकते हैं उसके बाद की जनरेशन कैसे बनेगी, उसके बाद जो अडल्ट आएंगे वो कैसे होंगे, होंगे वो कितने कंफर्टेबल होंगे फाइनेंशियली, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, वो बहुत कंफर्टेबल होंगे पेरेंटहुड के साथ में, और जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। तो हर एक अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पाएगा खुलकर। There is no time to waste. Let's continue with our work. तो आता क्या है कि टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए, अपना हमें काम कंटिन्यू करना। तो ये जो मेडिटेशन है आते एंड ऑफ द सेशन हम करेंगे। इसके बाद चैप्टर 5 व्हाट डू वी डू। तो अगर हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स को एक बार ध्यान से देखें तो अभी तक हमने क्या क्या जाना कि हमारा मतलब जो हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स है वो बहुत रिजिड नहीं है। अगर हमने एक तरह से बचपन से सोचा भी है, हमारी आदत पड़ गई है, तभी भी कोई रूल नहीं है, हार्श रूल नहीं कि हमें उसी तरह से सोचते रहे। तो हम अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकते हैं। रियल प्रॉब्लम जिसे मानते हैं वो एक्चुअल में रियल नहीं है। रियल प्रॉब्लम जो सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमने क्या जानी कि वो है आई एम नॉट गुड इनफ। ये डीप बिलीव होता है हमारे अंदर। हमारे थॉट्स हमारे डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो हम किस तरह से पता लगा सके किसी भी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो वो हमारे थॉट्स हमारे बिलीफ सिस्टम में। So, इतनी बातें जानने के बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है, व्हाट डू वी डू नाउ। तो हमने सब कुछ जान लिया, अब हम अभी क्या कर सकते हैं। I see my patterns and I choose to make changes. तो मैं अपने पैटर्न्स देख रही हूँ, मेरी जो बिलीफ सिस्टम है, मैंने किस तरह से सोचा है बचपन से, क्या क्या कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ रही हैं, जो मैंने अपनी बिलीफ बना
roadmap and I choose to make changes. तो changes करने के लिए भी हमें willing चाहिए। थॉट्स है, नेगेटिव बिलीफ्स है, तो उनको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो डिसाइड चेंज, तो ये डिसीजन जो है ना चेंज का, ये हमें खुद ही लेना पड़ेगा। Finger our hands horrid at what we may call the mess of our lives, and just giving up all the ways many people react at this point. Others get angry at themselves or at life and also keep up. By picking up, I mean they decide to. That's all. The rest of it goes just stay the way it is. At least you know how to handle that when you don't like it, but it is familiar and you hope it won't get any worse. मेरी बस क्रिएट हो गई है, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने का मतलब क्या है कि होपलेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो कोई चेंज करना इम्पॉसिबल हो गया है, तो फिर कोशिश करनी ही क्यों। तो ऐसा कई लोगों का मानना है। तो और बाकी चीजें वो क्या क्या सोचते हैं कि कुछ जैसे हैं वैसे रहते हैं, एटलीस्ट हमें ये तो पता है ना कि इस पेन को कैसे हैंडल करना है। ये पेन तो हमें पसंद नहीं है पर ये फैमिलियर है। ठीक है, तो इसीलिए वो फैमिलियर बन करना। और अब ये होप रख सकते हैं कि ये और ज्यादा खराब ना हो, तो इस तरह से लोग क्विट कर देते हैं। चेंज करने के लिए विलिंग ही नहीं होते। टू मी हैबिचुअल एंगर इज लाइक सिटिंग इन अ कॉर्नर विद अ डन टैप ऑन। डज दिस साउंड फैमिलियर? Something happens and you get angry. Something else happens and you get angry again. Something else happens and you get angry again. Something else happens and once again you get angry. But you never get beyond getting angry. What good does that do? It's a foolish reaction to waste your time in the getting angry. It's also a refusal to perceive life in a new and different way. It would be much more helpful to ask yourself how you are creating so many situations together. What are the reasons that causes all these frustrations? What are you giving out that attracts and does things to irritate you? Why do you believe that you get your way? You need to get angry. Whatever you give out comes back to you. The more you give out anger, the more you are creating situations for you to get angry at. Like sitting in a corner with a dumb clap on, getting nowhere, getting nowhere. Does this paragraph bring up feelings of anger? Good. It must be hitting home. This is something you could be willing to change. Mother carrying कि लाइफ में कुछ हुआ, हम एंग्री हो गए, फिर कुछ हुआ फिर हम एंग्री हो गए, फिर कुछ और हुआ हम और एंग्री हो गए, और फिर कुछ हुआ फिर हम एंग्री हो गए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ होते जा रहा है और हम एंग्री होते जा रहे हैं। मदर कह रही है कि अब हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम ऐसा क्या, कौन से बिलीफ सिस्टम्स है जिनकी वजह से हम इतनी सारी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं जो कि हमें एंग्री होने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो क्या हमारे वे में कौन सा बिलीव आ रहा है जिसकी वजह से हमें नीड हो रही है कि हम एंग्री होते जाए। लास्ट में उन्होंने ये भी समझाया कि हम जो बाहर लेते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। तो जितना हम एंगर दें उतनी ही हम सिचुएशंस क्रिएट करेंगे एंग्री होने के लिए। तो जितना हम एंगर बाहर देंगे उतनी ही ज्यादा सिचुएशंस हमारी लाइफ में आएंगी ताकि हम और ज्यादा एंग्री हो सकें, तो हम कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे, फिर एंग्री एंग्री होते हैं। ऑथर कह रही है कि क्या ये पैराग्राफ पढ़कर आपको एंग्री फील हो रहा है, कैसी फीलिंग्स आ रही है, और अगर आ रही है तो फिर आप एकदम सही रास्ते पे हो, क्योंकि ये जानने के बाद आपको विलिंग होना है चेंज करने के लिए। अपने अंदर में आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करना है, इन पैटर्न्स को ब्रेक करना है ताकि सिचुएशंस इंप्रूव हो सके। मेक अ डिसीजन टू बी विलिंग टू चेंज।
अब डिसीजन क्या लेना है? टू बी विलिंग टू चेंज, चेंज करने के लिए हम विलिंग हैं, चाहते हैं चेंज करना। इफ यू रियली वांट टू नो हाउ स्टबर्न यू आर, just approach the idea of being willing to change. We all want to have our lives change, to have situations become better and easier, but we don't want to have to change. We would prefer that they change. In order to have this happen, we must change inside. We must change our way of thinking, change our way of speaking, change our way of expressing ourselves. Only then will the outer changes occur. This is the next step. We are now fairly clear on what the problems are and where they came from. Now it is time to be willing to change. तो जो विलिंग टू चेंज का आइडिया है, इसमें ऑथर ने ये समझाया हमें कि जब भी हमें अपनी लाइफ को चेंज करना होता है, सिचुएशंस हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ के सिचुएशंस बेटर हो, इजी हो, हम अच्छे से उनसे डील कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते तो हैं, पर हम चेंज करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो सिचुएशंस खुद चेंज हो। तो हमने अपनी फिंगर्स कहाँ पॉइंट करके रखी है? आउटसाइड वर्ल्ड में। तो हम चाहते हैं कि वो चीजें चेंज करें, हम खुद से चेंज करने के लिए रेडी नहीं। लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि चीजें चेंज हो, बेटर हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है? हमें खुद अपने अंदर में चेंज लाने की जरूरत है। हमें चेंज करना होगा अपनी वे ऑफ थिंकिंग, किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम बातें करते हैं, हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, तब कर आउटर चेंजेस जो है वो ऑकर होंगे। जब हम अपने अंदर में इनसाइड चेंजेस लेकर आएंगे, when things change inside you, things automatically change outside you। तो हमारे मूवी में चेंजेस जरूर देखने हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है। अब हम फेयरली क्लियर है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। तो कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम? सेंट्रल इशू क्या है कि आई एम नॉट गुड इनफ। हमारे अंदर सेल्फ के लैकिंग है, वहीं से सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। इसीलिए अभी ये टाइम है कि हम विलिंग हो जाए चेंज करने। बार बार ऑथर विलिंग टू चेंज नहीं लिख रही है, डायरेक्ट चेंज का नहीं लिख रही है, इट्स टाइम टू चेंज नहीं लिख रही है, क्योंकि कोई भी चेंज जो है उसके लिए हम जब भी विलिंग होते हैं, फिर कोई भी सिचुएशन होती है जब हम विलिंग होते हैं, कुछ चीज करना चाहते हैं, तभी हमारा आधा से ज्यादा काम हो जाता है। तो हमें डिसीजन लेना है, हमें विलिंग होना है, और फिर हम देखेंगे द रेस्ट विल फॉलो। I have always had a streak of stubbornness within me. Even now, sometimes when I decide to make a change in my life, this stubbornness can come to the surface, and my resistance to changing my thinking is strong. I can temporarily become self righteous, angry, and withdrawn. Yes, this still goes on within me. It's only one of my lessons. I know I'm hitting an important point of change. Every time I decide to make a change in my life, to release something else, I'm going ever deeper into myself to do this. Each old layer must give way in order to be replaced with new thinking. Some of it is easy, some of it is like trying to lift a boulder with a feather. The more tenaciously I hold on to an old belief when I say I want to make a change, the more I learn this is an important one for me to release. It is only by learning these things that I can teach others. तो ऑथर अपना एग्जाम्पल लेकर कह रही हैं कि वो जब भी कुछ चेंज करना चाहती है, तो इतने साल हो गए उन्हें इनर वर्क करते हुए, उन्हें काउंसलिंग लेते हुए, लोगों को सजेशंस देते हुए, इतने साल हो गए हीलिंग जर्नी में उन्हें। लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में क्या होता है, वो जब कुछ चेंज करना चाहती है तो उनके अंदर काफी स्टबर्ननेस रहती है। स्टबर्ननेस मतलब जिद्दीपन जैसा।
तो वो चेंज नहीं करना चाहती है। वो कई बार सेल्फ राइटियस बन जाती है कि मैं सही हूँ, एंग्री होती है, विथड्रॉ कर लेती है उस डिसीजन से। तो ये सारी चीजें ऑथर ने अपने क्यों बताई, ये बताने के लिए कि उनके साथ इतने सालों तक के सारे काम करते हुए भी ये चीजें हो सकती है, तो फिर हमारे साथ में भी होंगी। तो एक हमें वार्निंग टाइप की मिल गई है पहले से ही। तो हमें क्या करना है, जैसे ऑथर गिव अप नहीं करती है, वो जानती है जितना ज्यादा वो किसी बिलीफ को होल्ड ऑन करके रखना चाहती है, चेंज नहीं करके जाना चाहती, तो उतना ही ज्यादा उन्हें चीज रिलीज करने की जरूरत है। उनकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज है, तो वो गिव अप नहीं करके उस चीज को चेंज करने की फिर भी कोशिश करती है। तो इससे हमें भी यही इंस्पिरेशन, यही मोटिवेशन मिल रही है कि हमें भी चेंज करना होगा अपने ओल्ड बिलीफ को। और कोई भी ओल्ड बिलीफ जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस ओल्ड बिलीफ को हमें रिप्लेस करना होगा एक न्यू पॉजिटिव बिलीफ के साथ में। और ये सारी चीज़ें लर्न करके ही हम दूसरों को सिखा भी सकते हैं। इट इज माई ओपिनियन दैट मेनी रियली गुड टीचर्स डू नॉट कम फ्रॉम जॉयफुल हाउसहोल्ड्स वेयर ऑल इज easy. They suffer much pain and suffering, and they have worked through the layers to reach the place where they can now help others to become free. Most good teachers are continually working to release our need to remove ever deeper layers of limitation. This becomes a lifetime occupation. The main difference between the way I used to work at releasing beliefs and the way I do it today is that now I don't have to be angry at myself in order to do so. I no longer choose to believe that I'm a bad person just because I find something else to change within me. तो मैं कह रही हूँ कि जो अच्छे अच्छे टीचर्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स, उनके जो हाउस होल्ड में सारे जॉयफुल कंडीशंस, इजी कंडीशंस होना बहुत रेयर चीज है। तो उन्होंने बहुत सारी पेन और सफरिंग वाली जगह से उठ करके अपनी डीपर लेयर्स को गो थ्रू करके फिर वो एक मुकाम तक पहुंचते हैं, अपनी सारी लिमिटेशंस को तोड़ करके एक मुकाम तक पहुंचते हैं। तो मेन डिफरेंस वो बता रहे हैं कि पहले वो कैसे रिलीज करती थी अपने बिलीव्स और अभी कैसे करती है उसमें। जब पहले वो अपने रिलीज करती थी बिलीव्स को, नेगेटिव बिलीव्स को, तो फिर वो खुद पर गुस्सा हो जाती थी कि ये तो गलत मैंने सोच रखा था, मैं एक बैड पर्सन हूँ। तो इस तरह से उनका खुद को क्रिटिसाइज करने का एक नेचर था। लेकिन अब वो क्या करती है, अब वो ऐसा नहीं करती है कुछ भी। अब उनको पता है कि कोई भी बिलीफ सिस्टम को अगर उन्हें रिलीज करना है तो खुद के ऊपर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें खुद को बुरा समझने की जरूरत नहीं है। तो अब वो चीज इजी होने लग गई है। तो उन्हें भी ये चीज जानना होगा, जब भी हमें खुद के अंदर में कुछ भी नेगेटिव दिखे, तो ये चीज हमें सोचना होगा कि ये चीज तो चेंज करनी है, ठीक है, आई एम विलिंग टू चेंज, पर हम खुद को क्रिटिसाइज ना करें इस चीज के लिए। अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक से सीख के आगे बढ़े, पर खुद को क्रिटिसाइज ना करें। क्योंकि अगर हम खुद को क्रिटिसाइज करेंगे तो उससे हमारी पावर डिक्रीज होगी, हम अपनी पावर को कम करेंगे। और जब हम अपनी पावर को कम करेंगे तो फिर हम और भी ज्यादा हमें मुश्किल होगी उस बिलीफ को रिलीज करने में। इसीलिए खुद को प्यार करें, जैसे ऑथर कहते हैं सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ये हमें इंक्रीज करना होगा अपने अंदर में। खुद को अप्रिशिएट करने से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक और लाइन थी उनकी कि फॉर मी सेल्फ लव begins when we stop criticizing ourselves for anything. तो खुद को क्रिटिसाइज ना करना भी सेल्फ लव है। को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, खुद को अप्रिशिएट करके अपनी पावर बढ़ानी है और इस पावर को यूज करना है हमें, ताकि हम और ज्यादा अच्छे से अपनी अंदर की क्लीनिंग कर सके। जो मेंटल हाउस क्लीनिंग हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें मिरर एक्सरसाइज में ध्यान दिया था। तो इस तरह से हमें इस बुक में हील होने के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो हम अपने बहुत डीपर लेयर्स तक जाएंगे।
और उसके लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए, हमें बहुत पावर चाहिए सारी एक्सरसाइज को अच्छे से करने के लिए। तो अपने पावर बढ़ाते रहें, अपनी एनर्जी बचाते रहें, और ये एक्सरसाइजेस हमें करनी है। सो टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाउस क्लीनिंग. नाउ लेट्स डू अ शॉर्ट मेडिटेशन. Then we will take the techniques. Close your eyes. Sit back comfortably. In the infinity of life, where I am, all is perfect, whole, and complete. I no longer choose to believe in old limitations and laugh. I now choose to begin to see myself as the universe sees me. Perfect, whole, and complete. The truth of my being is that I was created perfect, whole, and complete. I will always be perfect, whole, and complete. I now choose to live my life from this understanding. I am in the right place at the right time, doing the right thing. All is well in my world. Thank you so much. You can share your takeaways now. हेलो करीना सिस्टर। Hello, Rata sister. मुझे आज का ये एग्जाम्पल जो ऑथर ने दिया कि उनके स्टबर्ननेस के बारे में, वो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छी लर्निंग मिली है इससे कि वो भी वो पर्सन भी बहुत स्ट्रगल करता है अपनी ओल्ड पैटर्न्स के साथ, जो कि वो जो टीचर है जो काउंसलिंग देते हैं खुद ही प्रैक्टिकल में, एंड बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। वो खुद भी बहुत सारे पैटर्न्स को क्रॉस करते हैं, तभी वो हेल्प कर पाते हैं आज अपने एक्सपीरियंसेस से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी उनको दिक्कत होती है। तो जो मेरे पैटर्न्स है ना, वो मेरे को सामने दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स है जो रिपीटेडली रिपीट होते रहते हैं। तो वो स्टबर्ननेस, वो रिजिडिटी मेरे कुछ पैटर्न्स में दिखते हैं। तो जब ये ऑथर ने कहा तो मुझे भी मोटिवेशन मिला कि आई डोंट हैव टू सी माई सेल्फ एज अ बैड पर्सन, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू चेंज द थिंग which are means repeating many times, still not able to change। तो भी एज अ बैड पर्सन नहीं देखना है खुद को, खुद पे गुस्सा नहीं होना है, लेकिन उसको एक चैलेंज के जैसे, या फिर समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज इन मी। बस इतना जान लो और प्यार से उसको चेंज करो, वैसा। एंड द सेकेंड थिंग विच आई लव was I am in the right place at the right time doing the right thing in the meditation which you just practiced now। ये वाला लाइन बहुत हेल्पफुल है, दैट इसलिए मैंने फोकस किया कि ताकि जो भी सुने ना वो भी सोचे अपने को और रिपीट करे दैट वी ऑल आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग। ये बहुत जरूरी है ताकि प्रेजेंट में हम फोकस कर पाए एंड फ्यूचर के लिए डरे भी ना, पास्ट में बार बार देखे भी ना। तो यस, दिस वाज माय टेक अवे। थैंक यू। Thank you so much for sharing your takeaway. And thank you for repeating that line. हाँ जी।